Dear student, good morning once again. In my previous video, we talked about women change the world. In the last video, we understand what was the position of women in the past and how slowly and slowly but the help of women and other great person who support the women to get their right, and now it is in position to every woman or woman or girl have right to go to school without any interference, not only in school, everywhere, in office, in college. Today girls and women have a huge right, neither outside of the house whereas inside the house. So today, this right which women and girls enjoy today, it is not easy task. It is a very difficult work which done by the women or women organization. So in this topic today we discuss women movement. It means कि how this right enjoyed by all over the world women. Actually some are the exception, but you can say that the woman and the world today they enjoy, but it is not a easy task how they get it and how they struggle fight against discriminations. So this include the women movement. क्या उनकी वोमेन मोमेंट है, किस किस तरीके से उन्होंने उस वोमेन को देखा है. टुडे वोमेन एंड गर्ल now have right to go to school, study with the boys. Now in our constitutions, in our practical life, mostly women have equal right than the boys, not only in school, other field also. But this struggle, but this not possible for a quick steps. Actually this right comes due to a very hard struggle fought by the women, individual women or a group of women here. So what kind of moment women done in our country, neither in our country सिर्फ अपनी कंट्री में नहीं, अदरवाइज हम इन द वर्ल्ड के भी बहुत सारे कंट्री में देखें, जैसे यूके देख लें, ओके, यूएसए देख लें, वहाँ भी उन्होंने राइट के लिए, चाहे वो राइट टू वोट हो या उनको एजुकेशन के लिए हो. और अभी मोस्टली देख रहे हो कि बहुत सारी कंट्री में अब एग्ज़ाम्पल देख लें जो सऊदीया है, वहाँ पे भी आप न्यूज़ चैनल्स के थ्रू आपने देखा होगा कि वोमेंस को अब वहाँ की गवर्नमेंट ने भी अलाउ किया है कि यू आर फ्री टू ड्राइव द कार out, you should if you want you come outside. So without so that is the whole thing. It is not easy task. This is comes through a very hard struggle fought by the individual women or group of women or women organization, as well as some men also support, and they feel that the right of women which should be given by our society, our country. So this moment are generally we discuss about the kinds of movement. So actually these are three types. First one is the campaigning. campaign करना. campaign means होता है कि campaign to fight discrimination and violence against women, important part of the women movement. ये campaign जो है, जो डिस्क्रिमिनेशन जो इनइक्वालिटी के अगेंस्ट या वोमेंस पे जो वायलेंस है, जो हिंसा हो रही है,
उसका एक बहुत ही जो कंपेनिंग है इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वुमेन मोमेंट, ये वुमेन जो महिलाओं द्वारा मोमेंट चलाया गया है उसका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पार्ट है। कंपेन हैव आल्सो लीड टू न्यू लॉ बीइंग पास्ड, और ये कंपेन, ये उनका अवेयरनेस, ये लोगों को अपने लॉ के लिए, अपने राइट के लिए डिमांड करना, ये मजबूर करती है कि गवर्नमेंट ने भी उनके प्रोटेक्शन के लिए या उनके राइट के लिए बहुत सारे लॉ पास किए हैं। एक एग्जांपल्स हैं, a law was made in 2006 to give women who face physical and mental violence within their homes। ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम विशेष हमारी कंट्री में रही है कि जो वुमेन्स को उनके घर में मेंटली या फिजिकली जो हरासमेंट किया जाता है, इसके लिए अब गवर्नमेंट जो वायलेंस उनके साथ होती है, घरेलू हिंसा होती है उनके हस्बैंड द्वारा, उनके अदर फैमिली मेम्बर्स द्वारा, चाहे वो डाउरी हो गई, चाहे वो उनको जो है बहुत सारे बंदिशों में रखना या उनको ह्यूमिलेट करना, तो इन सभी के लिए गवर्नमेंट ने 2006 में अगेंस्ट वायलेंस वुमेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लॉ पास किया है जिसे हम कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, घरेलू हिंसा कानून। ये क्या कहता है कि वुमेन्स को घर में होने वाले वायलेंस से प्रोटेक्ट करता है, और ये एक लीगल प्रोटेक्शन है किसको, वुमेन्स को। सिमिलरली एफर्ट मेड बाय द वुमेन मूवमेंट लेड द सुप्रीम कोर्ट इन फॉर्मुलेट गाइडलाइंस इन 1997, और 1997 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने भी एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर दिया है कि वुमेन्स के हितों की रक्षा की जाए, उनके वायलेंस को रोका जाए। सेकेंड वन इज़ द कंपेनिंग, just minute wait, where is the video, campaigning, yes. Next one, effort made by the women movement led to the Supreme Court to formulate guidelines in 1997 to protect women against sexual harassment। जो उनके साथ यौन अत्याचार गर्ल्स समझ करके उनके साथ जो हमारी स्टेरियोटाइप्स हैं जो सोसाइटी में बनी थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस बना दी कि किसी भी वुमेन्स और गर्ल्स का जो भी सेक्सुअल हरेसमेंट है, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, उसको प्रोटेक्ट किया जाए और ऐसे लोगों को पनिश किया जाए। अब इन 1980s फॉर एग्जांपल वुमेन ग्रुप अक्रॉस द कंट्री स्पोक आउट अगेंस्ट डाउरी डेथ, और जो हम दहेज प्रथा में जो अब आपकी सोसाइटी, आपकी कंट्री का एक वर्स प्रॉब्लम बन जाता है, जो कि एक अभिशाप ही है, एक साइन ही है, एक पाप ही है, जिसमें जो लालची लोग हैं वो गर्ल्स को डाउरी के लिए, स्पेशली बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनके घरों में वायलेंस भी करते हैं या डाउरी के लिए उनको मार भी डालते हैं, चाहे सिस्टर इन लॉ हो, चाहे ब्रदर इन लॉ हो, या उसका हस्बैंड हो, या मदर इन लॉ हो। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने 1990 एक्ट में डाउरी एक्ट के तहत ऐसे लोगों को पनिश करना शुरू किया और एक एक्ट बनाया कि ऐसे मैटर में इन्वॉल्व होने वाले लोगों को इलीगल माना जाएगा, उनके लिए अपराध माना जाएगा और उनको पनिश किया जाएगा या स्टॉप किया जाए, जिससे कि महिलाओं पे होने वाले जो ये वायलेंस है इसको प्रोटेक्ट किया जाए। नेक्स्ट है राइजिंग अवेयरनेस, जागरूकता फैलाना। ये स्पेशली वुमेन्स जो हैं, इंडिविजुअल वुमेन और वुमेन इंस्टीट्यूशन जो हैं मिलकर थ्रू द पोस्टर, स्टेज सॉन्ग, नुक्कड़ सभाएँ, बहुत अलग अलग प्ले के द्वारा वो लोगों को वुमेन राइट के बारे में जागरूक करती हैं, अपने राइट की डिमांड करती हैं, वे लोगों को बताने का प्रयास करती हैं कि मेरे साथ क्या गलत हो रहा है, मुझे क्या चाहिए। इसमें बहुत सारे मेल पर्सन, अब ऐसा नहीं सोच लेना है कि हमारी सोसाइटी में सारे जो मेल कम्युनिटी है वो अगेंस्ट है, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे चाहे वो आप एग्जांपल ले सकते हो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, है ना, बहुत सारे लोग हो गए जिन्होंने वुमेन अवेयरनेस को और इंक्रीज़ किया है, वुमेन्स को राइट देने के लिए और ज़्यादा प्रयास किया है। तो
ये सभी लोग इनको अपने हितों के लिए, अपने राइट्स के लिए लोगों में क्या करते हैं, अवेयरनेस लाते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ द कंपेनिंग, सेकेंड वन इज़ द राइजिंग अवेयरनेस, एंड थर्ड वन इज़ द प्रोटेस्टिंग, विरोध करना, धरना देना। अक्सर आपने देखा होगा, अपने शहर में देखा होगा, ये हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री का ये फंडामेंटल राइट है कि लोग अपनी बात को कह सकते हैं, वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट अगर उनके साथ कुछ इलीगल हो रहा है या उनके फेवर में नहीं है या उनके अगेंस्ट है। तो प्रोटेस्टिंग भी क्या है कि गवर्नमेंट की ऐसी भी कोई लॉ जो पार्लियामेंट फॉर्म कर देती है, जिन्हें लगता है कि वोमेन, इंडिविजुअल वोमेन या वोमेन इंस्टीट्यूशन को लगता है कि ये इनके फेवर में नहीं है या इनके अगेंस्ट है, इससे बैड इम्पैक्ट आएगा, तो वे गवर्नमेंट का क्या करती हैं, प्रोटेस्ट करना शुरू करती हैं। प्रोटेस्ट के लिए वो सड़कों पे आती हैं, बैनर्स लेती हैं, पोस्टर लेती हैं और गवर्नमेंट को ये बताती हैं, मीडिया उनको शो करता है, वो बताती हैं कि हमें प्रॉब्लम क्या है, हम इसका विरोध करते हैं, इतने लोग हमारे समर्थन में हैं। तो इस प्रोटेस्टिंग के कारण गवर्नमेंट तक ये आवाज़ पहुंचती है, चूँकि हमारे वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो लॉ मेकिंग बॉडी में इन्वॉल्व होते हैं। तो जब ये जाते हैं, गवर्नमेंट है या अपोजिशन पार्टी है, इस मैटर पे डिस्कस करते हैं और किसी अच्छे सोल्यूशन पे निकलते हैं। अगर उनको फील होता है कि इट इज़ नॉट अगेंस्ट इन वोमेन, it affect a major group of women, then it pressurized to government to change the law and make the other law which is a balanced law which protect women as well as societies. Showing solidarity यानी अपनी बहादुरी दिखाना। बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं कि बहुत सारे वोमेंस हैं जिन्होंने फाइट किया, सॉलिडरिटी दिखाई और वो अदर वोमेंस या वोमेन ग्रुप को मोटिवेट करते हैं कि यू नीड टू फाइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड ट्राई टू सीक द जस्टिस, कि तुम्हें डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट फाइट करनी चाहिए और अपने लिए न्याय की मांग करनी चाहिए। दैन ये सारे जो मोमेंट हैं, यही आज कारण है कि आज हमारे सोसाइटी में गर्ल्स या वुमेन्स को इक्वल राइट है। बट वन थिंग आई शेयर टू यू, इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट which I told you, maybe some constitutional rights, our constitution protect the women, but it is real working when we change our mind, when we respect the women, when we respect the girls. We never do such thing which harass the woman, any kind, either domestic violence or other kinds of their rights. And you can start from your home. और आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो? होम। इट इज़ नॉट, अगर हम इस पॉलिटिकल चैप्टर को पढ़ते हैं कि वोमेन चेंज द वर्ल्ड, इट्स नॉट मीनिंग दैट कि यू नीड टू read it and write down question and answer and you get the marks. No, 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 that is not real meaning. Its meaning is that कि you must change. You are educated person, you have responsibility to change the society, and how it possible? You can start from your home. If in your house, forget everything. If you are not able to explain whole the society, but you can do one thing. You start from your home. You should respect your parents, your girl's sister, your other women's. Respect and give equal right. Don't show your superiority against the women. अपनी माँ का ख्याल रखो, अपनी माँ का हेल्प करो, अपनी बहन को इक्वल राइट दो, आप भी उनके कामों में हाथ बढ़ाओ। ऐसा नहीं है कि आप बॉयज़ हो तो आपको सिर्फ खेलने की आज़ादी है, पढ़ने की आज़ादी है, सो जाना नहीं, आप भी घर में हेल्प कर सकते हो। आपकी सिस्टर अगर घरों में सफाई कर सकती है तो वाई नॉट यू, तुम भी कर सकते हो। यू नीड टू डू इट। दैट इज़ द रियल lesson, real knowledge of this lesson. Have a nice day.